fine. I'm Dr. Aliagas and you are watching YouTube channel A-Level Camps. In this lecture, we will discuss the Gram-Schmidt process. What is Gram-Schmidt process? Let's say we are given the set of vectors which are linearly independent. Then everybody knows that they will span a subspace. So the question arises here, we are interested here to find those vectors that not only span the vector space but also they are perpendicular to each another. So to determine the perpendicularity or the orthogonality of two vectors, firstly we should know about the dot product. So let's say we have two vectors, the dot product of two vectors, let's say v1 and v2 is defined as v1 dot v2. It is nothing but v1 transpose v2. So student, consider we have v1 7 6 and v2 4 2. Both vectors v1 और v2 जो हैं belong to R square. So student, v1 dot v2 7 6 4 2, तो corresponding components को multiply करें and then add them, you will get 7 6 2. It means 28 plus 12 is nothing but 40. Or in another words, we can write v1 dot v2 v1 transpose v2. What does it mean? It means you take transpose of 7 6, you will get row vector, and 4 2 you have 28 by matrix multiplication you will get, which is 40. So both are same. तो इट मीन्स कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आप उसकी डॉट प्रोडक्ट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं. So dear student, this is nothing but the dot product of two vectors. Now we show that if the dot product is 0, it means the both vector will be perpendicular to each other or both vector are orthogonal to each other. So उसके लिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं. Let's say एक वेक्टर है v1 3 1 1. सेकेंड वेक्टर है -1 2 1. इसकी डॉट प्रोडक्ट लीजिए. व्हाट यू विल गेट हियर, आप देखिए तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो R³ के एलिमेंट हैं. तो व्हेन वी फाइंड v1 v2, व्हाट यू विल गेट, मल्टीप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग -3 + 2 + 1 -3 + 3 is 0, means v1 is perpendicular to v2, or in another words you can say that both vectors are orthogonal to each other. तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपने जो भी वेक्टर स्पेस है उसकी ऐसी बेसिस कैलकुलेट करें सच दैट कि जो बेसिस हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हो. मींस के एक वेक्टर जो है बेसिस का वो बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो. तो दे स्पैन द सेम स्पेस. लेकिन अब मुझे क्या मालूम कि हर दफा जो मैं बेसिस कैलकुलेट कर रहा हूँ उसके जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ रहे हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे. मे भी कुछ हो जाए कुछ ना हो. तो वी हैव डिटरमिन्ड सच अ मेथोडोलॉजी. मींस के जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने एक ऐसी मेथोडोलॉजी डेवलप कर रखी है जिससे जो आपके पास अगर बेसिस मौजूद हों तो हम जो है उससे ऑर्थोगोनल बेसिस जो है वो बना सकते हैं. उस प्रोसेस का नाम है ग्राम-श्मिट प्रोसेस. तो आइए पहले हम ग्राम-श्मिट प्रोसेस स्टेट करते हैं, इसके बाद इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं. तो स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट द ग्राम-श्मिट प्रोसेस. लेट्स से वी हैव अ वेक्टर स्पेस V and W is non-zero subspace where x1 x2 up to so on xp are the basis for the W subspace. So we are interested to find orthogonal basis of subspace W. So what we will do here, we consider v1. let's say जो vi's हैं वो हमारी ऑर्थोगोनल बेसिस हैं और xi जो है वो हमारी सिंपल बेसिस. तो ये स्टूडेंट हम कहते हैं कि x1 is the v1. so for the second orthogonal element v2, how we define it, x2 from here minus the projection of x2 over the v1. The projection is defined as this, x2 dot product with v1 and v1 dot v1 with v1. So similarly, the third orthogonal element v3 is defined as
x3 and its projection over the orthogonal element v2 and v1, यानी कि जो उसके प्रीवियस एलिमेंट्स हैं, जो आपने ऑर्थोगोनल एलिमेंट v1 v2 निकाले, जो भी नेक्स्ट है उसका प्रोजेक्शन प्रीवियस के ऊपर फाइंड आउट करना है। तो प्रोजेक्शन प्रीवियस पे फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा कि आप इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए और ये यूनिट वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट, ये सारा तरीका। तो इट मीन्स कि ये जो वी आईज आपने कलेक्ट किए हैं, ये वी आईज क्या बनाएंगे, इसकी ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएंगे, वेयर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर द स्पैनिंग सेट ऑफ V1 to VP is same as the spanning set or the spanning subspace of X1 XP, यानी कि दोनों से जो स्पैनिंग सबस्पेस आ रही है W वो सेम हो। तो आइए स्टूडेंट एक एग्जांपल करते हैं। So student, in this example we will find the orthogonal basis for the subspace W. So by the Gramsci method process we consider V1 is X1, which is nothing but, you can observe here X1, X2 and X3 bases are linearly independent. So what about the V2? It is X2 minus projection of X2 over V1. What is X2? X2 dot product with V1, X1 जो है वो V1 ही है, तो X2 किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, यू विल गेट 3। V1 की डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज 4 एंड V1। सो सिंप्लीफिकेशन गिव्स यू, लेट्स से आप इसको 4/4 लिख लीजिए। सो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि V1 जो है वो ये वेक्टर है और V2 जो है वो ये वेक्टर है। नाउ वी फाइंड V3 बाय द Gramsci method process। V3 is defined as X3 and projection of X3 over the previous element V1 and V2 means component of X3 along the vector V2 and similarly component of X3 along the vector V1. So student, what you will get from here, X3 dot V2, this is your V2, इसकी और X3 की डॉट प्रोडक्ट लीजिए, what you will get, और V2 की V2 के साथ डॉट प्रोडक्ट वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/16। ऑल एलिमेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो V2 इज, ये स्टूडेंट V2 आ गया, ये X3 डॉट V2 आ गया, ये V2 डॉट V2 आ गया। 1/4 1/4 16 और ये 16 बैलेंस हो गया। सो यहाँ पर अब X3 की V1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है, X3 की V1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, यू विल गेट 2, और V1 की V1 के साथ डॉट प्रोडक्ट इज 4 एंड V1 इज, सो स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन गिव्स यू this is 2 and 12 mean 1/6, और दिस इज 1/2। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको 3/6 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे -3/6 और इधर हम लिख लेते हैं 6/6 अपनी आसानी के लिए। तो स्टूडेंट यू हैव 0 -4 2 and 2। तो
it means this is V3. So we are claiming that the subspace W is spanned by the orthogonal bases V1, V2 and V3. तो अब हम यहाँ से देखना चाहें कि क्या V1 बाकी जो रिमेनिंग V2, V3 है उसके साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो इट मीन्स का वो रिमेनिंग वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, सिमिलरली V2 की V3 के साथ। तो ये आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती। अल्लाह हाफिज़।